اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ ہے سر, اور یہ سلسلہ ہے ڈبیٹ کا. لیکن کیا حالات کیا ہیں باہر, خامخواہ رش ہے یا ہے؟ نہیں, رش ہے, کافی رش ہے. ہاں, آج شاید لوگ نکلے ہیں باہر. اچھا, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. اور ہمارے جو اس مقابلے کے رنرز اپ تھے, ان کے ساتھ ہبا لائف کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ جائیں گے, اور ہم اب یہاں بیٹھ کے آرام سے سنیں گے. اور فاروق بھائی آج تو آپ کے پوائنٹس بھی ایڈ کرتے ہیں, کریں, ٹھیک ہے نا؟ بالکل کریں. آپ دونوں کا فائنل ڈیسیجن آج فاروق بھائی. بالکل صحیح ہوگا. بلکہ اناؤنسمنٹ ہم فاروق بھائی سے کرواتے ہیں. ہاں, اناؤنسمنٹ فاروق بھائی کرتے ہیں آج کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. تقریری مقابلہ جسے منظر نگاری فاروق بھائی ڈیکلیمیشن کہتے ہیں. بھائی تقریر تو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور مقابلے کے لیے کرتے ہیں, یہ تو وہ تقریر کرتے ہیں جو پروفیشنل تقریر ہے. ہم نے تو ایک ہی مقابلہ دیکھا ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے, اور غالب کو بھی بالآخر یہ کہنا پڑا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا بات ہے, کیا بات اچھا ہے. مقابلہ ویسے ہی ہے, عمر کے اثر پوری عمر بھر جاری رہتا ہے. فاروق بھائی آج کا ٹاپک بڑا مزے کا ہے. واہ, مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. واہ, بڑا مزہ آئے گا, واہ. بڑا مزے کا ٹاپک ہے. یہ سوچ کے تو نہیں رکھا کچھ؟ فاروق بھائی کو بھی سوچ کے رکھا ہے مجھے لگتا ہے. مجھے لگ رہا ہے دو جگہ پہ جا رہا ہے اس وقت بڑے آرام سے. جی, سو بلائیں ہمارے جو پہلے مقرر لیکن ہیں. ایک بات ہے کہ فاروق بھائی آج اس بات پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو لشکر تھا کہیں اور ہے, فاروق بھائی وہاں ہے. جی, شیراز ہمارے ساتھ ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج سے. السلام علیکم شیراز, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وش یو آل دا بیسٹ. پہلی گھنٹی بجے گی, اس کے بعد آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہوں گے. میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گا یار, یہ بیٹا یہ بچوں کو ذرا اپنے پاس بلا لیں, بیکاز ڈیبیٹ کا مسئلہ ہے, ذرا سے بھی ڈسٹریکشن ہوگی وہ پوری مضمون بھول جائے گا. ہمارے پاس آلریڈی 2 بچے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں دونوں. کل رات کو بھی پتہ نہیں شہر میں کیا ہوا, اتنے خوبصورت بیان میں طوطے نے بول بول کے دماغ خراب کر دیا. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں نا, یہ ڈیبیٹ. اچھا, جامعہ کراچی سے ہیں آپ؟ یہ میرے پاس کسی اور کا کارڈ آ گیا ہے, لکھا ہوا تو یہ تھا جامعہ کراچی سے. معذرت یار, کیمرے کیسے, آپ فیس بک پہ نہیں ہے نا میرے ساتھ, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے. کوئی نہیں, خیر ہے. جی شروع کریں. 3 2 1 یس. مٹی ڈالیے ذی وقار میرے حریف کے ان ارادوں پر کہ جسے یہ لگتا تھا وہ اپنے کثیر لشکر سے میرے قلیل لشکر کو مات دے دے گا. مٹی ڈالیے میرے حریف کی اس یزیدیت پر کہ جسے یہ لگتا تھا وہ آل محمد کا پانی روک کر انہیں مدینہ روانہ کر دے گا. مٹی ڈالیے میرے حریف کی اس فرعونیت پر کہ جسے یہ لگتا تھا وہ علی اصغر کی گردن پر تیر چلا کر خود کو بہادر کہلائے گا. مٹی ڈالیے میرے حریف کی اس سلطنت پر کہ جس کے پیچھے آل محمد کا لہو پانی کی طرح بہایا گیا. مٹی ڈالیے میرے حریف کی اس جیت پر کہ جس نے اسے مردود اور مجھے فاتح ٹھہرایا. مٹی ڈالیے میرے حریف پر کہ جو میرے 72 سنوں کے مقابلے میں اپنا لشکر لیے نکلا کہ ادھر سپاہ شام ہے, 1000 انتظام ہے, ادھر ہے دشمنان دین, ادھر فقط امام ہے. کیا عجیب شان ہے, غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. آج دنیا جس مزاحمت کے سجرے سایہ دار تلے بیٹھی ہے اس کا بیج بونے والے بھی حسین ابن علی تھے ذی وقار کہ یہیں سے مجدد لفسانی تنہا نکلے اور باطل کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا کہ یورش کا مقابلہ کرنے سر سید احمد خان تنہا نکلے اور مسلمانان ہند کو ایک سمت عطا کی کہ ایسی سمت پر چلتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح تنہا نکلے اور ایک عظیم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور غنیم کو یہ باور کروایا کہ میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں,
जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। थैंक यू। थैंक यू चौको, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब टीम वाव से मलाइका कुरैशी, इनका स्कूल सही लिखा हुआ है, ईडन ग्रामर स्कूल, एम आई राइट जी? सो मलाइका कुरैशी, 3, 2, 1, यस। 8वीं सदी है, अफ्रीका का जंगल है जिसमें अदालत लगी हुई है। इस अदालत का मुंसिफ भी सरदार सांबी है और मुद्दई भी सरदार सांबी। सामने ही 12 साला लड़का थर थर कांप रहा है। उसका बाप बिलक बिलक कर रो रहा है। माँ पाँव पकड़कर माफ़ी मांग रही है, मगर सरदार सांबी लड़के की मौत का फरमान जारी कर चुका है। जानते हैं सदर अली वकार उस लड़के का जुर्म क्या है? जुर्म ये है अली वकार कि उस लड़के ने चिड़िया के शिकार के लिए गुलैल से जो पत्थर फेंका, वो पत्थर सरदार सांबी के हाथ पर लग गया। अब सरदार सांबी अपने फरमान की तकमील करते हुए अपनी तलवार उठाता है और यकायक लड़के का सरतन से जुदा कर देता है। ये देखकर माँ की रूह भी ये कहकर परवास कर जाती है कि मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। मंजर बदलता है सदर अली वकार। बर्मा में इंसानियत खौफ का शिकार, भारत कश्मीरियों की आहोबका में मुब्तला, फलस्तीन की नन्ही मरियम की बेनूर आंखें अनगिनत सवालों के साथ आखिरी हिचकी पर ये सदा लगाती है कि कब तक खुद को दर्द से जिंदा रखूं कि ऐ जालिम मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। कि जब ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी तो पूरी दुनिया के लश्कर को जानवरों पर तरस आया, मगर जब यहाँ साहिवाल में नन्हे बच्चों के सामने उनके माँ बाप और बहन को गोलियों से भून दिया गया और केस को ऐसा मोड़ा गया कि बच्चा ये कहकर रोने लगा कि मेरे माँ बाप को इंसाफ कैसे मिलेगा, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। सदर अली वकार, मैंने सोचा था कि मैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क को बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए एक काबिल सियासतदान बनूंगी, मगर जब मैंने देखा कि परदेश में मेरे देश को मुर्दाबाद कहा गया, यहाँ एनआरओ का लालच, पनामा का कहर रुसवाई का सबब बना। जल से जुलूस, लॉन्ग मार्च तो कभी इस्तीफों का मुतालबा करने वाले सियासतदान, ऐसे में मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला, और लश्कर भी ऐसे कि जो वतन को बेचते भी हैं, वतन को माँ भी कहते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। मुझे मसला ये हो रहा है, मुझे इनकी भी आवाज़ आ रही है तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती, ये सबसे बड़ा इशू हो रहा है। सो मुझे दो आवाज़ें, वो समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा होता है फिर। सो शोएब असगर साहब यूथ पार्लियामेंट से, लो भाई आप तो बोलोगे, यूथ पार्लियामेंट है भाई, प्रैक्टिस में है भाई। यूथ के लीडर अगर 65 के भी हो सकते हैं, हाँ तो ये भी हो सकते हैं। नहीं मजाक कर रहे हैं जी। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह। फैसले जंगों के तलवारों से कब होते हैं, फैसले जंगों के तलवारों से कब होते हैं, हक पर हों तो 313 भी गजब होते हैं। सदर अली वकार, बातिल तो हमेशा लश्कर में आया है, रोज़ाए अज़ल से दोराए हाजिर तक हमने यही पाया है, फिर वो 313 हो या हो फर्दे वाहिद, क्या खूब गजब डाया है। हाल ही में एक फर्द मोमिन ने, एक मर्द मोमिन ने हमें एक सबक सिखाया है। शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, जिस हाथ को मैंने चूमा वही खंजर निकला। सदर अली वकार, फतेह मक्का, जंगे बदर, जंगे खदक या नवासा और नाना, जब करबला के मैदान में बेयारो मददगार अकेले खड़े, हक की खातिर तन्हा खड़े और दुश्मनाने यजीद को ललकार कर कह रहे थे कि मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। सदर अली वकार, यही नहीं, यजीद का बातिल लश्कर से लेकर कश्मीर में होने वाली हिंदुस्तान की यजीदियत तक, हिजाब पर लगाई जाने वाली पाबंदी पर मुस्कान खान का हिंदुस्तानी यजीदियत को ललकार कर अल्लाहु अकबर का नारा लगाना, यह इस बात की सदा देता है कि हाँ था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझ में डूबे, मैं
जो सहरा नजर आता था समंदर निकला, हाँ हाँ मुझ से तन्हा के मुकाबिल तेरा समंदर निकला। सदर अली वक़ार, इसराइल जो कई दहाइयों से हमारे किबला अव्वल पर काबिज है, हमारे किबला अव्वल पर बेहतरीन तरीके से काबिज है, जदीद असले से लैस है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जब फलस्तीनी नौजवान ने एक पत्थर उठाकर इसराइली फौज को मारा तो उस पत्थर ने पूरी फलस्तीन कौम को उजागर किया और कहा, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। यही नहीं सदर अली वक़ार, खुद को सुपर पावर कहने वाला, खुद की पूरी दुनिया में दहशत से थाप जमाने वाला, मुसलमान कुव्वतों को, मुसलमान ममालिक को पूरी दुनिया में रुस्वा करने वाला और इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब लेने वाला अमेरिका जब एक खुददार मुल्क अफगानिस्तान से टकराया तो उसको दिश्तो नाबूद कर दिया। जी घंटी नहीं बजी, टाइम अप होगा जी। और थैंक यू, बड़ी जज्बाती तकरीर थी भाई, बड़ी जज्बाती तकरीर थी। फारूक भाई क्या लग रहा है, ये दोनों क्या फैसला करेंगे? आखिरी का नाम क्या था? ये शोएब असगर। अच्छा, तेज बहुत ज़्यादा थे तो मुझे लगा शोएब अख्तर है, हाँ स्पीड में वो शोएब का असर अपने होगा। अंदाज से जैसे। जी मुझे लगता है कि टेक ऑफ तो जो ये पहले वाले, इनका नाम क्या है? शिराज। टेक ऑफ इनका अच्छा था। अच्छा। लेकिन जो इल्मियत है और कंटेंट, वो हमारी जो बेटी है उसका बहुत अच्छा कंटेंट था, ज़बरदस्त। सीक्वेंस उनकी अच्छी थी लेकिन उनकी कुछ अशार में गड़बड़ हो गई शोएब के, फंस गया था हाँ, कुछ लफ्ज़ फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, हाँ, तो मतलब है, लेकिन है अंदाज तो तीनों का जारी, ज़बरदस्त है। जी, जी आवाज़ मशक्कत भी। अच्छा देखिए, रवानी में होता है ऐसा कि कहीं ना कहीं कोई गलती चली जाती है। जैसे वो एक तकरीरी मुकाबले में हम मौजूद थे तो वहाँ ईदी साहब का और छीपा साहब का नाम लेना था, तो उसने नौजवान ने तेज़ी से कह दिया कि कौन कहता है कि इस मुल्क की कोख बांझ हो गई है, यही पैदा हुए चीपी और ईधा। अब ये जो गलती है ये काबिल कबूल है, ठीक है ना जी। वहशत में हर नक्श उल्टा नजर आता है। लेकिन अगर इसी तरह की गलतियाँ पिछले दिनों ज़्यादा में हो तो एक जाए, बहुत मशहूर हुआ था। अब दुश्मनाने यजीद, हम तो दुश्मनाने यजीद के साथ हैं, हम उनको बुरा तो नहीं कह सकते, तो रवानी में ये थोड़ी सा ख्याल रखना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप इस बात का भी कंसर्न करेंगे कि कहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा आज हमारा मुख्तलिफ है, कल परसों की तरह नहीं है। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बड़ी अच्छी तकरीर जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपका मौजू है आप उस मौजू के तबार से नहीं बोल रहे हैं, तो आप जितनी भी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, जितना भी अच्छा आप लिख कर लाए हैं, या जो भी अशार हैं और जो भी अंदाज़ है, वो शायद वो पीछे हो जाता है कि मौजू अलिफ है और तकरीर बे है, तो कहीं ना कहीं मसला यहाँ इतना तो नहीं था अलिफ बे से, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजू से थोड़ा हट के भाई बता दो कौन जीता है, भाई बता दो, थोड़ा सस्पेंस रखा जाएगा नहीं, जब नहीं, अलग अलग नहीं, हो गया मुझे तो। ब्रेक पे जाना अच्छा, है। शुक्रिया अदा करना है नंबर्स फारूक के भाई हिसाब का। से, नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि आगा शिराज साहब के पास जो फर्स्ट हैं मेरे पास नहीं है, जो उनके पास हैं, तो जो टोटल नंबर मिला के हुए हैं वो आज हालांकि फंबल होने के बावजूद शिराज जो हैं वो हमारे आज के फाते हैं। शिराज, कॉन्ग्रेचुलेशन शिराज, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आगा साहब, कल जल्दी आ जाइएगा ज़रा, ठीक है, कल Thank you, निकलेंगे, मुदस्सिर भाई, सहरी में फारूक भाई। मौजू के मुनासबत से तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, तन्हा तेरे एजाज से शमशीर बकफ हूँ, सब एक तरफ हैं मैं एक तरफ हूँ। क्या बात है फारूक भाई, इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है आपसे और आप लोगों से भी मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।